And again, obviously, the overnight developments are something that have left the whole world stunned also. And now Donald Trump might have been a relaxed man going before going to the bed, or maybe he's having sleepless nights, just like many of us here. But the point here is that many analysts are saying that Donald Trump did this only to benefit Israel and not US. Do you see it that way? Pankaj, let me tell you what happened in 2025 Hmm. and the 12-day war. Now, this is for very sure Mm-hmm. that has been maneuvered into this attack. It was not Trump who really wanted to strike. And Mm-hmm. we should remember what happened in 2025 in the 12-day war. First, Israel strike. After that, Trump joined the war. Trump started attacks. But suddenly, after 2 days, while it looked like that Trump is winning the war and they are able to kill 500 and 600 people in 2 days strike, after that, they stopped the strike completely. Why did Right. this strike? And after that, Israel did not stop the strike. They continued the strike. And then Trump even used, abusive language Hmm. against Netanyahu. At that time, Trump literally made Netanyahu angry, and Netanyahu was so upset. After that, Netanyahu decided that we have to kill Khamenei, and we want the change in the regime. And dream of Netanyahu has come true now. However, this 1 year, there was a very big tension between Israel, USA, multiple words exchanged. They were abusing each other, and it was all because Trump did not agree to what Israel wanted in 2025. However, with the pressure and, of course, the links and the friendship, so-called friendship that they have, which is all about money at the end of the day and selling, your weapons and everything. Israel agreed to what they wanted to do. Trump agreed to what Israel wanted to do, and now we see what is the end result. So of course it is all about what Netanyahu wanted, and now Netanyahu has shown that who is the real power. And we should also know, and we should definitely discuss about how the Jews are controlling the world and who is the real, power behind all the world order that we have and what sort of world order we want. So these powers who are working on the back, in the back doors, in the back rooms, they are the ones who are controlling Trump. So we should understand that how Israel is so important. And of course, for our Hindi audience also, we want to just tell them that they should remember, उनको याद रहना चाहिए कि 2025 क्या हुआ था और ट्रंप और नेतन्याहू में कितनी दुश्मनी बढ़ गई थी। तब ट्रंप कैसे गालियां दे रहे थे नेतन्याहू को, बहुत सारी बातें ऐसी बोली थी जो हम कैमरे पे नहीं बोल सकते। ट्रंप अपने जी. ट्वीट बोल सकते हैं या अपने ट्रूथ सोशल पे बोल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल पक्की बात है कि ये ट्रंप का किया हुआ काम नहीं है, लेकिन ये नेतन्याहू का काम है। और नेतन्याहू जो है वो ट्रंप से बड़े और स्ट्रॉन्गर लीडर बन के उभरे और ये डिसाइड कर पाए और इस तरह की स्ट्राइक कर पाए और आज खामनेई को मार दिया। अब देखते हैं कि किस प्रकार से ईरान डिवाइड हो जाता है या ईरान एक एक देश बना हुआ रहेगा और किस प्रकार से अब नई व्यवस्था बनती है, कौन आता है, कौन इसको रूल करेगा। ऑल दीज थिंग्स आर नाउ इनटू कैलकुलेशन। हाउएवर, द बिगेस्ट न्यूज दैट इज कमिंग, दैट Iran has said that they are going to launch the fifth wave of strike. It means it is not going to end. There's still something left in Iran, and there is a lot that is going to happen in the next 1 to 2 days. जब तक ईरान के पास मिसाइल्स हैं बचे हुए इतने सारे, और जो भी रशिया से मिसाइल्स आए हैं या चाइना से जो भी मिसाइल्स आए हैं उसका इस्तेमाल होना अभी बाकी है। और कल एक स्टेटमेंट और आया था कि ईरान ने बोला we have only used the old stockpiles of our missiles. We haven't even touched the new stockpiles that we have. तो अभी बहुत सारे मिसाइलें बाकी हैं। दूसरी चीज है कि पैट्रियोटिक मिसाइल्स ट्रंप के पास उतनी नहीं है जितना कि ईरान के पास मिसाइलें हैं। तो एक समय भी आ सकता है जबकि ट्रंप के मिसाइल्स खत्म हो जाए, जिससे कि उनका डिफेंस सिस्टम हो सकता है मार खा जाए। सबसे बड़ी बात यही है कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को वो कुछ नुकसान पहुंचा पाएंगे कि नहीं, ये देखने लायक होगा। तो आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू कीप एन आई। और बहुत जो दुबई और इस तरह के शहरों से जो तस्वीरें आई हैं वो दहला
वाली डेफिनेटली है, क्योंकि कोई सोच नहीं सकता था कि बुर्ज खलीफा के पास मिसाइलें फट रही है या पाम बीच पे मिसाइलें गिर रही है, दुबई के एयरपोर्ट को आपने टारगेट कर लिया। तो ये ईरान की बहुत ताकत वाली या बहुत ही स्ट्रांग उनका एक कमिटमेंट था इस वॉर को लेकर के, कि उन्होंने ऐसे देशों पे भी हमला कर दिया जहां लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा। बहरीन पे आप कर देते, लेकिन दुबई में या यूएई में हमला करना, और जो तस्वीरें सामने आई वो लोगों को बड़ा मैसेज जरूर देती है कि ईरान क्या कर सकता है। बिल्कुल नागेन, और इस पूरे घटनाक्रम पर वन इंडिया भी हमेशा चौबीसों घंटे आपको नई नई जानकारी भी दे रहा है अपने अंग्रेजी और हिंदी यूट्यूब चैनल्स के हमें माध्यम से, और हमें साथ ही साथ हमें हमें बहुत गालियां दी गई। अब मैंने जो रात को 1 बजे वीडियो डाला और उसमें ये अनाउंस किया कि खामेनी मारे गए हैं, उनकी डेड बॉडी इसराइल दिखाने वाला है, तो हमें बहुत गालियां दी जा रही। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा हो गया है, लेकिन अब जो सच है वो तो हमें बताना ही पड़ेगा। हम तो वो बिल्कुल। नहीं डिसाइड कर रहे कि भाई कौन मारा जा रहा है कौन नहीं मारा जा रहा है, जो खबर है वो तो देना ही है। बट ये जो माइनॉरिटीज हैं या जो लोग ईरान के समर्थक हैं, उनको ये विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि खामेनी जी मारे गए हैं। अभी भी आप देखेंगे, कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि लोग भाई किस दुनिया में जी रहे हैं कि विश्वास नहीं कर सकते कि खामेनी को मार बिल्कुल दिया। मार दिया गया। बिल्कुल नागिन, देखिए ये जो पूरा का पूरा ये जो नाम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और अमेरिका के लिए इतना बड़ा नाम था जो कि इजराइल के कहने पर वो युद्ध में उतरा, ये एक ही नाम था, और दो तीन बहुत ही सुपरफिशियल कारण थे अमेरिका के लिए इस युद्ध में उतरने के लिए। उनमें से एक तो न्यूक्लियर आर्म्स को डेवलप करना था ही, साथ ही साथ ये था कि खामेनी जिस तरह से परेशान करता था इजराइल को या फिर सऊदी अरेबिया को, उस वजह से हूथीज की समस्या जो सऊदी अरेबिया के साथ रही है और जिस तरह से बैक करता था ईरान, उसको लेकर, और साथ ही साथ इजराइल में हिजबुल्लाह और हमास की तो समस्या हम लोग जानते ही हैं। एक चीज अरविंद तेजावत जी मैं आपसे जानना चाहूंगा यहाँ पर, जिस तरह से नागिन ने बताया कि हमारे कई वीडियो पर और पूरे ग्लोबली भी अगर आप एंटी ईरान वीडियोस आते हैं या उनके सेंटिमेंट्स को सही नहीं लगते हैं तो काफी नाराजगी जाहिर की जाती है। एक तबका ये भी मानता है कि ये अच्छा हुआ है। हमने तस्वीरें भी देखी कैसे जो वहाँ के यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं ईरान में, वो खुश हो रहे हैं कि खामेनी को एलिमिनेट कर दिया गया है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका उनको समर्थन भी करता है। तो आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं मिसरीडिंग तो नहीं हो गई थी, कि हम लोग ये मान के चल रहे थे कि नहीं, ईरान की जनता को वहाँ की सरकार से निजात दिलाने के लिए अमेरिका ने जो किया है वो अच्छा है, जबकि ईरान यहाँ पर उनके लिए 40 दिन का शोक मना रहा है। तेजावत साहब, शायद आप म्यूट पर हैं। तेजावत जी, हाँ शायद आप म्यूट पर हैं। बिल्कुल। माफ कीजिएगा। जी बताएं। मैं दोबारा से अपनी बात को कहता हूँ, बहुत सारी चीजों को समझने के लिए हमें इतिहास में लौटना पड़ता है, और हमें पता है कि ये दरअसल जो साम्राज्यवादी या एक तरीके से जिसको हम हिंदी में उपनिवेशवादी ताकतें जो हैं, वो किस तरीके से अपना काम करती है, इसको समझिए। जब अंग्रेज महाराष्ट्र में गए थे तो वहां के दलितों ने उनका स्वागत किया था, क्योंकि उन्हें ये लगा था कि ये नए लोग हैं जो हमें ब्राह्मणों से यहाँ आजादी दिलाने के लिए आए हैं। राजस्थान में जब वही अंग्रेज आए थे तो उन्हें राजस्थान के जो राजाओं को ऐसा लगा था कि ये वही लोग हैं जो हमें मराठों और पिंडारियों के आक्रमण से आजादी दिलाने के लिए आए हैं, तो उनका स्वागत हुआ था। तो ये भ्रम की स्थिति पैदा होती है, और ये होती है, और वही हाल दरअसल ईरान में भी है। ईरान का वो तबका जो खासकर व्यापार करता है या जिनके बेटे विदेशों में पढ़ते हैं, वो सारे के सारे जो लोग हैं वो अमेरिका की ये जो नई जो तरीके की जो सरकार है या आजादी है, इसके सपोर्टर्स हैं। इसमें दो चीजें देखनी पड़ेगी। एक तो ईरान की जो व्यवस्था है उसकी आंतरिक विरोधाभासों को देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इस्लामिक स्टाइल की क्रांति तो कर ली, पर उसके बाद में उन्होंने मॉडर्निटी या एक तरीके से जो कहना चाहिए कि आधुनिकता की तरफ ये लोग नहीं गए। ये अलग बात थी कि वो मॉडर्निटी भले ही वेस्टर्न स्टाइल में नहीं होती, वो भले ही ईरानियन स्टाइल में होती, पर वो उस तरफ भी नहीं गए, और उन्होंने जो धर्म का जो दामन है वह नहीं छोड़ा। तो ये उस समाज का विरोधाभास था, पर इसकी कीमत उसे बहुत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप यूरो अमेरिकन प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखेंगे तो वो लोग साफ साफ क्या बातें कर रहे हैं। एक तो पहली बात वो ये कह रहे हैं कि वहां पे कितना पेट्रोलियम गैस और वो है, और इसका फायदा कितना होना है, तो वो साफ साफ है। दूसरी बात ये कि वो वर्ल्ड ऑर्डर की कर रहे हैं, और उन्होंने दरअसल बहुत ही प्लानिंग तरीके से किया। ये केवल ईरान और अमेरिका का युद्ध नहीं है, इसके पीछे एक लंबी रणनीति का हिस्सा है। आप देखिए, लंबी रणनीति ऐसे कि
पहले उन्होंने रूस को युद्ध में उलझाया ताकि रूस और जो ताकतवर उस तरीके से ना हो पाए जिस तरीके से वो हो। ईरान को छेड़ने से पहले उन्होंने सीरिया में सत्ता परिवर्तन किया और प्रतिक्रिया देखी कि चीन और रूस की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। उसके बाद में उन्होंने सीमित लड़ाई लड़ी और सीमित लड़ाई लड़ने के बाद में उन्होंने देखा कि क्या दुनिया की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। और उसके बाद में अभी भारत के प्रधानमंत्री का भी वहां पे उसका दौरा हुआ था और निश्चित रूप से जो बेन्यामिन नेतन्याहू और उनके बीच में ये बात जरूर हुई होगी या उन्होंने ये संकेत जरूर किया होगा कि देखिए हम हमला करेंगे और भारत को ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा हो। तो यह तमाम चीजें हैं जो ये इशारा करती है कि ये एक लंबी रणनीति का हिस्सा है जो पिछले 8-10 सालों में बन रही थी कि ईरान को कैसे नेस्तनाबूद किया जाए और उसके बाद में जो साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी पंजों को किस तरीके से पश्चिम एशिया में फैलाया जाए। तो ये एक लंबी रणनीति का हिस्सा है बिल्कुल पंकज साहब। बहुत जिस तरह से आपने चीज़ों को जोड़ा है तेजावत साहब, मुझे लगता है कि अगर ऐसा था जिस तरह से 2021-22 में यूक्रेन और रूस की लड़ाई शुरू होती है और वो काफ़ी लंबी खींचती है और उसके बाद अमेरिका का एक अलग पलटवार होता है। नागिन, आप इसको किस तरह से देखते हैं? पहला सवाल तो ये। दूसरा ये कि जो सबके मन में आ रहा है कि तेहरान में अब कौन कंट्रोल में होगा और यहां से चीजें दबेंगी या उठेंगी? आपको भी अनम्यूट करना होगा लगता है नागिन। जी माफ करिएगा जी जी। एक चीज तो तय है कि खामेनेई के मरने के बाद अगर पूरा ईरान सेलिब्रेट नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग तो जरूर सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी जी रिपोर्टर्स ने, ऑन ग्राउंड रिपोर्टर ने बताया कि ईरान में दबे पाव सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। डेथ ऑफ खामेनेई ये नारे कल गूंज रहे थे, लेकिन कोई सड़क पे नहीं आया। और ऑफ कोर्स ये तो बहुत जाहिर सी बात है, वहां पे हजारों लोगों को मारा गया जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। बस उनको फांसी नहीं दी गई, लेकिन हजारों लोगों को मारा गया। और वहां पे प्रोटेस्ट तो अब चलिए, अब प्रोटेस्ट की कोई बात नहीं है, लेकिन सपोर्ट है, यूएस के लिए सपोर्ट है। और वो वही जहां डेथ टू अमेरिका के अलावा और कुछ सुनने के लिए मिलता नहीं था, लेकिन अब खामेनेई मारे गए तो कुछ और लोग जरूर बाहर आएंगे। रेजा पहलवी मुझे लगता है कि जरूर पहुंचेंगे ईरान, क्योंकि ये रेजा पहलवी भी अचानक से 1 महीने या 2 महीने पहले नहीं आए हैं। वो 6 महीने पहले से भी स्टेटमेंट्स दे रहे थे और ये बोल रहे थे कि हम वापस मैं ईरान जाऊंगा। अब उनका जो पूरा अकाउंट है वो भी रिवाइव कर दिया गया है, प्रिंस ऑफ ईरान बन गए हैं लास्ट शाह से। तो उनका जाना तो लगभग तय लग रहा है कि वो जाएंगे। अब कितने आसानी से ये परिवर्तन होगा ये देखने लायक होगा, क्योंकि ईरान की वजह से, आयर की वजह से ये बहुत मुश्किल है कि ये पूरा परिवर्तन इतनी जल्दी हो जाए। इतने सारे धमकियों देने के बावजूद मैंने अभी जस्ट शेयर किया कि ट्रंप ने बोला है जितना हार्डली आप हिट करोगे उतना बुरा होगा आपके लिए। यानी ये वॉर खत्म नहीं हुई है। जी जी ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। भले ही एक इंसान चला गया हो, लेकिन उसको तो बहुत इजीली रिप्लेस भी किया जा सकता है। तो अभी वॉर पूरे तरीके से ईरान ने खोया नहीं है, ईरान अभी हारा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम लीडर को लाना उनके लिए बड़ी बात नहीं होगी। वो सुप्रीम लीडर जरूर ले आएंगे, बहुत सारे क्लेरिक्स हैं जो मिलकर के डिसाइड करेंगे और सुप्रीम लीडर आएंगे। और ये जब वॉर खत्म नहीं हुई है और ये बोल ही रहे कि हम स्ट्राइक पे स्ट्राइक करेंगे, ट्रंप ने भी बोला है कि अगर आप तो वी आर गोइंग टू हिट यू हार्डर, कि आपको नेस्तो नाबूद कर देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मिडिल ईस्ट अब बदल चुका है, मिडिल ईस्ट कंप्लीटली बदल चुका है। एक नया मैप मिलेगा कि नहीं, ईरान का टुकड़े टुकड़े होते हैं कि नहीं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि ईरान में भी काफी जगह प्रोटेस्ट होते हैं और काफी जगह विद्रोह है, काफी जगह पे आपके लड़ाइयां भी हो रही हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग होता है। और बाकी के जो देश हैं वो बहुत चुप्पी साधे हुए हैं, तो इससे लगता नहीं कि कोई सपोर्ट उनको मिलने वाला है। चाइना जो है वो बस स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ। रशिया तो अभी वो स्टेटमेंट भी नहीं दिया उन्होंने, रशिया ने। तो आप देख लीजिए कि कोई उनका साथ देने के लिए नहीं आ रहा। इतनी बातें हो गई और ये ईरान, रशिया, चाइना की बातें होती थी कि तीनों मिलके सबक सिखा सकते हैं यूएसए को, लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा। यहां तक कि जेलेंस्की ने ये ट्वीट कर दिया कि जब आपने खामेनी को मार दिया तो फिर आप पुतिन को मारने में देरी क्यों कर रहे हो, वो भी तो एक डिक्टेटर है। तो आप इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। अब पुतिन को मार सकते हैं क्या ट्रंप इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने खामेनी को मारा? अब लग तो रहा है कि एक दिन में मार दिया, लेकिन जो तैयारी है पूरे 3 महीने की, 4 महीने की, उन्होंने करके मारा। और
जब ट्रंप पर कल सुबह उनका जो स्टेटमेंट आया था, एक्चुअली परसों रात का स्टेटमेंट था, लेकिन भारत वालों ने कल सुबह देखा जब वो हेलीकॉप्टर ले रहे थे, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिखाया कि इतना बड़ा स्ट्राइक होने वाला है 7-8 घंटे के जी अंदर। जी। स्ट्राइक हुई और बिल्कुल तबाह करके रख दिया। सुबह सुबह कौन स्ट्राइक करता है, ये लोग बातें कर रहे थे, तो इन्होंने सुबह का प्लान किया, तो बहुत बड़ा सरप्राइज था ईरान के लिए। अब जी। इन्होंने परिवर्तन तो आने वाला है पंकज जी, लेकिन लगता है कि उसके पहले बहुत ज्यादा जाने अभी जाने वाली है, बहुत ज्यादा मौतें हम देखेंगे ईरान के अंदर, ये बात तय है। इसराइल के अंदर आपने मौत नहीं देखी, बस अभी एक गंभीर रूप से घायल इंसान पाया गया है, और बहुत सारे ऐसे वीडियो जरूर आए हैं कि इसराइल जल रहा है, तेल अवीव पूरा जल रहा है, बहुत सारे वहां पे मिसाइलें गिरी है, लेकिन जब हम बात करते हैं कैजुअलिटीज की, तो केवल इंसान जो कि गंभीर रूप से चोटिल हुआ है। और जी। ईरान जानते हैं कि ऑलरेडी 200 लोग मार दिए गए हैं, जिसमें से कि 90 बच्चे थे। तो आप समझ, आज तो बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। आज स्ट्राइक्स बहुत पावरफुल होंगी, और ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है, वी ऑलरेडी नो कि उसमें कोई ज्यादा ताकत है नहीं, क्योंकि जॉर्डन, बाकी जगह जहां भी ईरान ने मिसाइल मारे, वहां कोई अभी तक एक भी अमेरिकी सैनिक मारा नहीं गया है। तो वो जी। पैट्रियट मिसाइल्स की जहां तक बात है, कब तक वो होता है, कितना ज्यादा है इनके पास, और किसकी मिसाइलें पहले खत्म होती है, ये देखने लायक होगा। और कितनी रशिया से मिसाइलें पहुंची हैं, अब ये सब तो 1-2 दिन में पूरा मामला सामने आ ही जाएगा कि कितना बिल्कुल। रशियन मिसाइल और चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम काम आता है जी ईरान। बिल्कुल नागेन, बात बिल्कुल पता है कि आप बता रहे हैं इट्स अ फाइट टिल द एंड, जैसा कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा था, और उसके पूरे मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह करने की बात हुई थी। तेजावत साहब, एक बात जो बार बार निकल के सामने आ रही है, और नागेन ने भी उसका जिक्र किया, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं ईरान के लिए, उसको बहुत ही उस पर बैंक नहीं कर सकता है ईरान। ईरान पड़ोस में है पाकिस्तान के, पाकिस्तान खुद भी घिरा हुआ है दो बड़े ही ऐसे मुल्कों से, एक अफगानिस्तान जहां वो लड़ाई चल रही है, और दूसरा है भारत। इसमें पाकिस्तान के रोल को आप ईरान के पक्ष में जाता हुआ देखते हैं, या एक न्यूट्रल रोल देखते हैं? क्योंकि कल तो पाकिस्तान ने बहुत जल्दी जल्दी में स्टेटमेंट जारी कर दिया था कि मुस्लिम देशों पर जो ईरान ने हमला किया है उसकी उन्होंने निंदा की है, लेकिन जिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की नागेन बात कर रहे हैं, उसको चालू रखने में कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि पाकिस्तान का छुपकर उसमें साथ हो सकता है। कुछ ऐसी जानकारी है आपके पास? ऑडियो एक बार देखेंगे। जी जी। जी, ऐसा हो सकता है बिल्कुल, पर इसमें दरअसल ये देखना होगा कि इंटेलिजेंसिया की जो खबरें हैं वो कितनी पुख्ता है, और हम लोगों का उन पर कितना एक्सेस है, जो कि बहुत ही लिमिटेड एक्सेस होता है, हमें ये पता है। पर कुछ ऊपरी तौर पर जो चीजें हैं, वो हम ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के भी क्लैशेस रहे हैं। उन्होंने जो खासकर बलूचिस्तान वाले एरिया पे ईरान ने भी मिसाइल अटैक किया था, और जी। बदले में पाकिस्तान ने भी अटैक किया था, तो यह चीजें तो हम देख सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो अफगानिस्तान का आपने पंकज साहब ठीक जिक्र किया, क्योंकि इसके पीछे पाकिस्तान की एक रणनीति ये है कि पाकिस्तान अपने आप को बिजी दिखाना चाहता है कि देखो अफगानिस्तान से हमें चैलेंज है, और हम अमेरिका के लिए उसका, जो अमेरिका का वहां एक इंटरेस्ट भी है बगराम एयरपोर्ट को लेकर, तो वो ये दिखाना चाहता है कि देखिए हम अफगानिस्तान में जो टीटीपी के जो लड़ाके हैं उनको मार रहे हैं, जो मूलतः अमेरिका के खिलाफ है, और इधर हमें इंडिया की तरफ से भी चैलेंज है, इसलिए हम आपको कोई मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, न तो गाजा में और न ही खासकर वेस्ट एशिया में हम आपको कोई सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो इससे पाकिस्तान अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका पे पाकिस्तान की डिपेंडेंसी जग जाहिर है, इसमें कोई बात नहीं है, और पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर भी बनना चाहता है, पर वो बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि एक जो वर्ल्ड लीडर है उसकी क्या हालत हुई है, और उसके बाद में पाकिस्तान अगर होता है तो उसके जो इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ जाएंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान के बहुत सारे हुक्मरान जो कि किसी भी तरीके से मुसलमान नजर नहीं आते हैं, ना तो नमाज पढ़ते हैं और ना किसी तरीके की कोई चीज करते हैं, तो ऐसे में जाहिर है कि वो लोग अमेरिका का ही साथ देंगे, क्योंकि जो डॉलर है, या जिसको हम कहावत में कहें कि जो सोने और चांदी के सिक्के तो वहीं से मिल रहे हैं पंकज साहब। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो मनी ट्रेल है और जो सर्वाइवल के लिए चीज़ें आवश्यक हैं पाकिस्तान को, वो डेफिनेटली वो अमेरिकन कॉफर से ही आ रहा है। नागिन, हाउ डू यू सी इट? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जिस तरह से समीकरण
वेस्ट एशिया कह लें, मिडिल ईस्ट कह लें, उसका बदलता हुआ नजर आ रहा है। उसमें भारत से ज़्यादा पाकिस्तान के स्टेक्स हाई हैं। वो सऊदी अरब से जिस तरह से उसने एक डील कर ली थी कि अगर उस पर हमला होगा तो इट विल कंसिडर देमसेल्व्स अंडर अटैक, प्लस अमेरिका से जिस तरह से नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश हो रही है, उस समय पाकिस्तान जैसे देश के लिए जो कि बिल्कुल पड़ोसी है ईरान का, और जी कई मामलों में उनकी रस्साकशी भी चलती रही है पास्ट में भी, उसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, पाकिस्तान तो जहां तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान के डिसीजंस डेली बेसिस पे लगता है डिसाइड होते हैं उनके लिए। अभी मुझे लगता है कि वो सर्वाइवल मोड में है। उनके पास पैसों की तो खतरनाक कमी है। इतना पैसा वो अमेरिका से लेते जा रहे हैं। ट्रंप के खुद के इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। जी तो आप जी। समझिए कितना ज्यादा यूएस इन्वॉल्व है। ये रियलिटी है, इट इज अ फैक्ट कि ट्रंप के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। जो बलूचिस्तान का रीजन है वहां पे ट्रंप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और उनकी बहुत ज्यादा नजर है वहां पर, क्योंकि जो मिनरल्स की बात हो रही है, ऐसे मिनरल्स जो ट्रंप चाहते हैं, जो ग्रीनलैंड से वो चाहते हैं, काफी सारी जगहों से ये लोग चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आप जानते हैं कि ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, तो ये सारे मिनरल्स आपको आपको इसकी जरूरत है। तो बलूचिस्तान में ट्रंप का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और ट्रंप के खुद के डील्स हैं। और पाकिस्तान का साथ अगर ट्रंप दे रहे हैं तो वो बस यूएस और पाकिस्तान रिलेशन की बात नहीं है, लेकिन ट्रंप के खुद के बिजनेस की भी बात है। ट्रंप का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर और बिजनेस को लेकर के उनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। और जिस प्रकार से खुलेआम उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, जिस प्रकार से वो डिनर और लंच करते हैं पाकिस्तानियों के साथ, तो ये बहुत क्लियर है कि ट्रंप पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान किसके साथ है वो हम कभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जिस जगह से उनको पैसा मिलेगा वो उधर निकल लेंगे। उनका ईमान और धर्म जो है उस पे अगर हम उस पे फोकस करने लगे तो हमें बहुत ज्यादा जलालत देखने को मिलेगी। क्योंकि आज जी देखिए जी। आप, तो वो बांग्लादेश के साथ भी हैं, वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें यहाँ तक भी बताया गया कि भारत ने अपने नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पे S-400s लगा रखे हैं, वहां पे हमारे जेट्स हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान अपना दोगलापन दिखा रहा है। वो चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रंप के बिना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था। अब बांग्लादेश में भी जो सरकार आई है या जो पूरा परिवर्तन हुआ वो भी यूएस के बिना पॉसिबल नहीं था। तो हमें समझना बिल्कुल। पड़ेगा कि ये चाइना और यूएस की लड़ाई में पाकिस्तान दोनों के साथ है। तो अब बिल्कुल। आप समझिए कि वो स्ट्रैटेजिकली चाहे कितना भी भीख मांग ले, चाहे जो भी स्थिति हो, लेकिन अब समझिए कि दुश्मनी तो उन्होंने, जो टू बिग पावर्स हैं उनके साथ दुश्मनी नहीं है उनकी, वो दोनों तो ये इनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। डिस्पाइट वी हेट पाकिस्तान और द पाकिस्तानी लीडर्स या उनका रवैया रहा है भारत के लिए या कश्मीर को लेकर के, लेकिन यहाँ तो एक तरीके से ये लगता है कि इतना भिखमंगा देश होके भी अगर आपने इतने स्ट्रांग दोस्त बना रखे हैं जो भारत के तो नजर नहीं आता, ना ट्रंप साथ देते हैं। तो एक दिन दोस्ती होती है मोदी जी के साथ, अगले दिन वो टैरिफ लगाते हैं, फिर एक दिन दोस्ती होती है, हम टैरिफ लगाते हैं, एक दिन पूरा भारत ट्रंप की तारीफ कर रहा होता है, अगले दिन हम उनको गालियां दे रहे होते हैं। तो जैसा मन होता है वैसा हम करते जी जाते हैं। लेकिन ये रियलिटी है, पाकिस्तान के दोस्त ज्यादा स्ट्रांग है भारत के दोस्तों से, क्योंकि भारत ने जी। रशिया के साथ भी अपनी दोस्ती खराब कर ली अब तो। बिल्कुल। उस पूरे तेल प्रकरण को लेकर और खास करके जो नई डील हुई है अमेरिका के साथ उसको लेकर देखा जाए, लेकिन ये ट्राइड एंड टेस्टेड रिलेशंस रहे हैं नागेन, भारत और रशिया के। और खास करके नॉन अलाइन मूवमेंट के बाद जब भारत ने उस पर्टिकुलर दौर में जो 60 और 70 के दशक का जो समय था वहाँ पर भारत ने संयम बरता था, उस समय की लीडरशिप की दाद देनी पड़ेगी। अब अपनी ज़रूरतों की वजह से है, तो मुझे लगता है पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी, इन दोनों ने इस बात को भांप तो लिया होगा कि अमेरिका इस तरह के एक्शंस ले सकता है। तो वो डील्स किस तरह से आगे बढ़ती हैं उस पर खैर हम लोग नज़र तो रखेंगे, बट फिलहाल वो शांतिपूर्ण नज़र आती हैं। लेकिन एक चीज़ जो शांतिपूर्ण नहीं नज़र आ रही है तेजावत साहब, वो है अमेरिका के अंदर जो हलचल हो रही है इस लड़ाई को लेकर। नागेन ने कई ऐसी रिपोर्ट्स फाइल की हैं जहाँ पर हमने देखा है कि बैटल लाइन्स हैव बीन क्लियरली ड्रॉन बिटवीन द रिपब्लिकन्स एंड द डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स का कहना है, जो कि वहाँ की ऑपोजिशन पार्टी है, ट्रंप की ऑपोजिशन पार्टी है, ट्रंप के अगेंस्ट है, उनका कहना है कि आपने कांग्रेस को समर्थन में नहीं लिया, आपने उनको अपडेट नहीं किया, और ये इस तरह का वॉर अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता है। और खास करके जब इराक अफगानिस्तान वॉर से निकलना पड़ा था अमेरिका को, और बहुत ही जहालत के साथ निकलना पड़ा था, तो फिर ये वॉर की क्या जरूरत थी? आपको क्या लगता है तेजावत साहब, डोनाल्ड ट्रंप का ये जो फैसला रहा अपने दोस्त नेतन्याहू के लिए,
वो कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को भी ध्यान में रख रहे थे, अपनी पार्टी के एटलीस्ट, क्योंकि थर्ड टर्म तो संभव नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, लेकिन मिड टर्म्स जरूर आ रहे हैं और उनकी पॉपुलैरिटी भी गिर चुकी है। बिल्कुल पंकज साहब, मिड टर्म के लिए उन्होंने एकदम साफ साफ कहा है कि हालत ठीक नहीं है रिपब्लिकन्स की। और हमने देखा है कि जब जब रिपब्लिकन्स आते हैं वो दुनिया को परेशान करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो इराक की लड़ाई हो, उस समय भी रिपब्लिकन्स ही थे, या जॉर्ज तो आप बुश। अगर फॉरेन पॉलिसी, जी जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल्कुल, फिर उनके बेटे, उन्होंने भी परेशान किया, और ये जी। तमाम लोग हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब भी शामिल है। तो रिपब्लिकन्स आते हैं तो वो दुनिया की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, और जब जब डेमोक्रेट्स आए हैं तो उन्होंने घरेलू नीतियों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, चाहे वो बिल क्लिंटन हो या तमाम लोग हो। तो उन्होंने, सबने, बराक ओबामा वगैरह सबने घरेलू नीतियों और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान दिया है। अभी हालत तो ठीक नहीं है रिपब्लिकन्स के, और ये सच है कि काफी वो खासकर अमेरिकन्स ये मान रहे हैं कि ये लड़ाई जो है वो उन पर थोपी हुई लड़ाई है। एक और जो चीज वहां ध्यान देने की है, जो कि बहुत ही महीन और बारीक है, कि अगर हम न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर ऑनरशिप को देखें तो वो ज्यादातर ज्यूस लोग हैं, जिसको काफी अच्छा खासा पैसा मिलता है जूस लॉबी से, जिसमें इसराइल भी शामिल है। और जो वॉशिंगटन पोस्ट है, 2013 तक उनकी जो ऑनरशिप थी वो ज्यूस के हाथ में थी। उसके बाद में कुछ खास बदला नहीं है, क्योंकि स्टाफर से लेकर जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक डिकेड में बदलता नहीं है, और ना बदलने की कोई गुंजाइश भी होती है। तो उनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो अभी भी वो है। और जो ट्रम्प साहब है, उसी सपोर्ट सिस्टम, खासकर अमेरिकन जो मीडिया है, जिसमें फेसबुक भी है, और अगर आप देखेंगे कि द ऑनर ऑफ फेसबुक इज इवन जूस, ऐसे तमाम जो है प्लेटफॉर्म्स हैं जहां जूस लॉबी काफी ताकतवर है। और ट्रम्प साहब जो है वो इस पूरी चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। पर अमेरिका में एक वैसे लोग भी है जो स्वतंत्र विचारों के हैं, और उन्हें ये लगता है कि ये जो थोपी हुई लड़ाई है वो बहुत आगे जाएगी और लंबे दौर में अमेरिका को नुकसान होगा। क्योंकि ईरान में भले ही खामनेई साहब को मार दिया गया, पर ईरान की विचारधारा को वो बदल देंगे, या कि जो नया जो सत्तासीन व्यक्ति आएगा, या कि ईरान के लोग हैं वो अमेरिका को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब कोई इतनी विश्वसनीय बातें नहीं है। और मैं यहाँ नगीन साहब के साथ जाना चाहूंगा उनके ओपिनियन के साथ में, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर वेस्टर्न सोर्सेस का भी अगर हम हवाला लें, तब भी हम देखते हैं कि वहां पे जो खामने के सपोर्ट में जो वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, और जिस तरीके की जो चीजें हो रही है, तो वो सारी जो मेन स्ट्रीम के जो मीडिया हाउसेस हैं, उन्होंने ये सारी खबरें बताई है। तो ईरान में अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि वहां अमेरिकन सपोर्टर्स बहुत ज्यादा संख्या में है। ऐसा अभी फिलहाल के लिए तो नहीं है। जी बिल्कुल, तिजारत साहब बने रहिए हमारे साथ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो प्रोटेस्ट मार्च चल रहा है ईरान में, तेहरान में खास करके, उसकी तस्वीरें। और उससे पहले हमने आपको दिखाया था किस तरह से कल जो हमला हुआ था ईरान की ओर से मिडिल ईस्ट के कई देशों पर, 6 से 7 देशों पर, उसकी तस्वीरें थी। लेकिन हमें ध्यान आकर्षित करना होगा, ध्यान केंद्रित करना होगा अब मिडिल ईस्ट पर, जहां पर जो अमेरिका के मित्र देश हैं उस पर, उन पर हमले की बात ईरान ने कहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी धमकी भी दी है कि ऐसी ऐसी जवाबी कार्रवाई करेंगे जो पूरे विश्व ने कभी नहीं देखी होगी। इतना खुलकर ट्रंप को कल से ही हमने बोलते हुए देखा है। द मोमेंट द फर्स्ट मिसाइल वॉज फायर्ड, ही चेंज, बिकॉज 2 से 3 दिन पहले जब हम लोग स्टेट ऑफ द नेशन, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस कवर कर रहे थे, उसमें एक दूसरे तरह के ट्रंप नजर आ रहे थे। वो बात कर रहे थे कि हाँ, ट्रंप, ईरान हमेशा अपने पुराने तरीकों पर चला जाता है, लेकिन 48 घंटे में इतने बदले तेवर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रंप अब ये ठान चुके हैं कि हम जो है अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन करेंगे। ईरान के लिए बड़ी चिंता की बात है, क्या करें क्या ना करें। टॉप लीडरशिप जा चुकी है, अब अपनी साख और अपनी नाक बचाने के लिए अगर वो ईरान फायर बिल्कुल ऐसा करते हैं। सोच ही नहीं रहा। मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ, ये सीएनएन की रिपोर्ट है। ईरान बिल्कुल ऐसा सोच नहीं रहा, एंड द न्यू वेव ऑफ स्ट्राइक्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, वो कि ये उसके पीछे की इन्होंने, मंशा क्या हो सकती है। के पीछे की मंशा है कि अब ये मरो या मारो, दिस इज द एंड। क्योंकि अगर पूरी सरकार ही बदलनी है, और ट्रम्प बोला, पेंटागन ने अब उन्होंने ये बोला है कि इस वॉर का, इससे आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं, इससे प्राप्त ये करना चाहते हैं, तो ये मैसेज यूएस सेंटकॉम का है कि हम इस वॉर से अमरीकियों को बचा रहे हैं, अमरीकियों को बचा रहे हैं, बिल्कुल। हो रहा है। देखिए वो कितनी दूर है। एक अमरीकी नहीं है, लेकिन अमरीकियों की रक्षा के लिए हो रहा है, और अमरीकियों की रक्षा तभी होगी जब तख्ता पलट होगा। तो
पूरे वॉर का जो सेंटर है वो है तख्ता पलट। तो अब बिल्कुल तख्ता पलट होने के लिए अब जी। ईरान के जो आईआरजीसी जो हमने बताया, या पहले भी हम काफी सारे डिस्कशंस में हमने ये बोला है कि आईआरजीसी बिकाऊ नहीं है और वो ऐसे लोगों की बनी हुई फोर्स है जो मरते दम तक साथ देंगे। और वो देख रहे हैं ईरान के जो लड़ाके हैं या ईरान की जो मिलिट्री है वो अभी स्ट्राइक कर रही है। मैं आपको बता देता हूं कि सीएनएन की एक जो रिपोर्ट आ रही है, उन्होंने हर जगह से स्ट्राइक्स की बात की है। जो बड़े बड़े शहर हैं जिसमें दोहा है, दुबई है, वहां जी। पे फ्रेश स्ट्राइक्स लॉन्च हुए हैं। यानी अब बिल्कुल मरो या मारो वाली स्थिति है। बहरैन से भी वीडियो आ गए हैं, बहरैन में भी स्ट्राइक हुआ है, इराक में भी स्ट्राइक हुआ है इरबिल एयरपोर्ट पे। अब ईरान सारे एयरपोर्ट्स को टारगेट कर रहा है विच इज बिग। और सारे इन एयरपोर्ट्स पे एक्सप्लोजन हो रहे हैं। हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कुछ लोग मरे हैं कि नहीं मरे हैं, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम तो ऑफ कोर्स वी हैव टू अग्री कि जो यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे दोहा में हो, कतर में हो, बाकी जगहों पे भी काफी अच्छा है। जॉर्डन में इतने महंगे महंगे उनके हथियार हैं, सारे जेट्स हैं, तो ऑफ कोर्स वो रहेगा। हाउएवर जो हम बात करते हैं कि इरानियन मिसाइल्स, उनके पास सुपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं, लेकिन अभी तक ऐसा लगता नहीं है सुपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल हुआ है। किस चीज का इंतजार हो रहा है, कौन कितने अपने बैलिस्टिक रिसोर्सेज मिसाइल्स और सुपरसोनिक मिसाइल्स पर रिसोर्सेज को चर्चा आप बिल्कुल चली। एक्सप्लॉइट कर रहे नागिन, हो। एक सवाल मैं आपसे मित्र पूछना चाहूंगा और फिर हम लोग तेजावत साहब को आ जाते जी। हैं। नागिन, तो इतिहास इसको कैसे देखेगा? क्योंकि आज हम लोग एक कस्प पर खड़े हैं। ईरान की कमर नहीं टूटी है, लेकिन टॉप लीडरशिप हटा दिया गया है। कल अमेरिका की एक डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव कैंपेन की एक सदस्य ने हमें कहा कि इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू कट दी हेड ऑफ द स्नेक। क्या ईरान यहां एक फैसला लेगा कि वो अपनी पूरी की पूरी जनता को, ईरानियों को बलि का बकरा बना दे, या यहां से दो कदम पीछे हट जाए? क्योंकि यहां अब चीजें एक्सपोज हो चुकी हैं और अमेरिका भी किसी मंशा में नहीं लग रहा है कि हम रुकेंगे। तो नहीं, यहां फैसला ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा पंकज जी कि दोनों में से कोई देश पीछे हटने वाले हैं। फुल स्केल वॉर शुरू हो चुकी है और ज्यादा, कल से ज्यादा भयावह आज की सिचुएशन होगी, ये गारंटीड है। क्योंकि अभी यूएस के स्ट्राइक्स होने बाकी, उन्होंने केवल एक दिन जी। स्ट्राइक किया, कल रात उन्होंने स्ट्राइक किया भी नहीं है। ईरान की सड़कों पर तेहरान में अभी हम वीडियोस देख रहे हैं कि लाखों का हुजूम ऑलरेडी है। आप इमेजिन करिए कि अगर एक स्ट्राइक केवल इस वक्त हो जाता है तो कितना बड़ा, कितने लोग मारे जाएंगे। तो बहुत ही गंभीर स्थिति है, लेकिन ईरान इससे दबने वाला नहीं है। ईरान की जनता मरती है, मरने दें, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तो बिल्कुल साख की लड़ाई है। क्योंकि अगर पूरी सरकार ही बदल जाती है तो क्या होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, सरकार तो आ सकती है, लेकिन लोग जो मरेंगे लेकिन उनका ये क्या लोग होगा? मरेंगे, लोगों की किसी को परवाह नहीं। आप 70,000 लोग मर गए, किसको परवाह है। रशिया यूक्रेन वॉर में ट्रंप खुद ही बोल रहे हैं हर हफ्ते वो 25,000 तो लोग लोगों को बचाने निकले थे, परवाह 35 है। मिलियन अरे लोगों को उनको बचा लेते हैं। मतलब उनको तो शर्म आनी चाहिए कि जो जी। बोलते हैं कि ये वॉर बंद कराया, वो वॉर बंद कराया, और खुद 8 वॉर में लड़ाई। यूएस को आपने झोंक दिया। यूएस के सोल्जर्स जब मरेंगे तब यूएस को समझ में आएगा, लेकिन अभी तो वो स्थिति नजर नहीं आ रही। हाउएवर द बिगेस्ट थिंग, बूट्स ऑन द ग्राउंड कैसे होगा। बूट्स ऑन द ग्राउंड होगा कि नहीं, और अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड होता है, ट्रंप भेजते हैं, तो उनको मुंह की खानी पड़ सकती है। ये यूएस की हिस्ट्री रही है कि जहां भी उन्होंने अब बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारे वहां उनको मुंह की खानी पड़ी। अब आप ये सोचिए, आपने अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करने का दावा किया, आज उसको रूल कौन कर रहा है। आप देखिए कि एक छोटा सा देश जहां जिनके पास कोई पावर नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन फिर वो डटे रहे। 20 साल लग गए उनको, लेकिन अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। अब ये वॉर इतना लंबा चलेगा कि नहीं, वो देखने लायक होगा। किसी का सपोर्ट आने का ऐसा तो अभी तक कुछ लग नहीं रहा, रशिया चाइना कोई सपोर्ट आएगा। हाउएवर ईरान खुद इस लड़ाई को लड़ सकता है, और अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात आती है तो मामला कॉम्प्लिकेटेड होगा, और उसमें ईरान डेफिनेटली दे विल हैव एन एज, और उनके लड़ाई काफी लंबी चल सकती है। तो टॉप कमांड को मार दिया, बहुत सारे लीडर्स को मार दिया, अपने हमास को भी खत्म किया। हाउएवर को खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। अभी देखते हैं हुदीज क्या करते हैं, क्योंकि हुदीज के कुछ स्ट्राइक्स कैन डेफिनेटली रूइन द गेम एंड कैन चेंज द गेम। क्योंकि ये तक की हिस्ट्री ये भी रही है, हुदीज में इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि जब 2023 से वॉर शुरू हुई और 2024 में पहुंची, तो एक समय ऐसा भी आ गया था कि हुदीज से डर के आप अपनी फोर्सेस को हटा दे रहे थे रेड सी में। जब भी हुदीज केवल एक जहाज पे स्ट्राइक करते थे, उसके बाद
से अपने हटा देते थे, B-2 बॉम्बर्स हो या जो भी इनके हथियार हैं और जेट्स हैं, उसको भी हुदीज ने गिराया। और हुदीज बड़े सम्मान के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस में आके बोलते थे कि हम हजार हजार के ड्रोन से B-2 बॉम्बर्स, उनके बिलियंस के B-2 जी बॉम्बर्स, जी, गिरा दे तो रहे हैं। ये मामला खत्म नहीं है, ये अब शुरुआत है। एंड ऑफ खामेनेई इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द वॉर, ऐसे मैं देखता हूं। इतना आसान नहीं होगा ट्रम्प के जी, लिए, और अभी बहुत लंबी बिल्कुल, चलने वाली है। बिल्कुल। और बूट्स ऑन द ग्राउंड जब तक नहीं जाते तब तक हम कह नहीं सकते कि ईरान का एंड हो गया है। नहीं, बिल्कुल, बूट्स ऑन द ग्राउंड की स्थिति तेजावत साहब तब आएगी जब अमेरिका द्वारा बनाई गई या फैसिलिटेट की गई एक नई सरकार को वहां चुनना होगा। कल भी अपने एड्रेस में ईरानियों को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आप बंकर्स में रहिए, बहुत सारे बम गिरने वाले हैं, और आप अपनी सरकार, ये तब तक होता रहेगा जब तक आप अपनी नई सरकार नहीं चुनते हैं। यही दावा अमेरिका ने अफगानिस्तान में भी किया था, और दांगेन ने सही कहा कि वहां अब वापस तालिबान का कब्जा हो चुका है। तेजावत साहब, मैं आपसे यहां पर यह जानना चाहूंगा कि एक तरफ लड़ाई जो है, वो आपने यूक्रेन और रशिया का जिक्र किया था, लेकिन हम डोनाल्ड ट्रंप के प्लेबुक से अगर चलते हैं तो वो क्विक सॉल्यूशंस पर जाते हैं, वो बैंग एंड बर्न की स्थिति उत्पन्न करते हैं। लॉन्ग ड्रॉन वॉर से वो बचना चाहेंगे क्योंकि उनके पास वो हिस्ट्री है, और उसी को आधार बना के वो चुनाव में आए भी थे। बराक ओबामा को हराने में जब बराक ओबामा फेल कर गए थे वापस वहां से अफगानिस्तान से सेना को वापस बुलाने में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर भी काफी ज्यादा चुटकी ली थी और उस पर उन्होंने पॉइंट्स स्कोर किए थे। आपको क्या लगता है कि यहां पर जो एक इशारा है कि एक लॉन्ग ड्रॉन वॉर भी हो सकता है? 48 घंटों में अभी तक चाइना, रूस, इन लोगों ने इशारा नहीं किया है। टैसिट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसकी मदद ईरान ही जानता है कि उनको कैसे हो रहा है। तीन जो एच हैं, हिजबुल्लाह, हमास और हूदी, उनकी कमर चलाई जाती थी, कमांड चलाई जाती थी ईरान से, जिसकी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया गया है। आपको क्या लगता है, लॉन्ग ड्रॉन मामला हो सकता है, या जल्दी ही हम देखेंगे कि हथियार डाले जाएंगे, या फिर भारी चोट करने के बाद ईरान झुक जाएगा? देखिए पंकज साहब, ये सारी प्रेडिक्शन हो सकते हैं, पर जो कुछ मजबूत प्रेडिक्शन है वो हम कुछ तथ्यों के आधार पर कर सकते हैं। पहला तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा है कि कुछ सप्ताह ये लड़ाई और चलेगी। तो अमेरिका की तरफ से अगर देखें तो ये तय है कि ये लड़ाई और चलेगी। और दूसरी बात ये कि एकदम अचानक से वो कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और आप अंदर ही रहिए। कैसे करेंगे? जब तक वो नीचे नहीं आएंगे, लोगों से बातें नहीं करेंगे, आकाशवाणी करके तो वो सत्ता परिवर्तन वहां कर नहीं सकते हैं। और एक बूढ़े आदमी को मारने के बाद में अगर वो ये चाहते हैं कि सब कुछ मसला खत्म हो गया है, तो खामनेई साहब ने तो मरने से पहले ही उन्होंने अपनी जो बाकी की जो लीडरशिप है उसकी एक लिस्ट तैयार कर दी थी कि जी। मेरे बाद में कौन होगा, कौन नहीं होगा, और हमें पता है कि अब क्या होने वाला है आगे। तो वहां पे खामनेई मारे गए हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसको शायद जीने की आशा भी नहीं थी। और जिस तरीके से जो सेफ्टी के जो, मुझे लगता है कि एक जो मौत जो चाहते थे खामनेई, वो उन्होंने हासिल कर ली है। अगर ये बुढ़ापे में बीमार होकर मरते तो शायद इतिहास उसको उस तरीके से याद नहीं रखता। तो उन्होंने उस तरीके की मौत ली है, और हमें पता है कि 79 में खामनेई क्या थे और मरने से पहले खामनेई क्या है। तो ये पूरी चीज तो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब अमेरिका वहां आता है और उसको किस किस चीजों को फेस करना पड़ेगा, ये तो वाकई मुश्किल है। और ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है, भले ये बम्बार्डमेंट वगैरह ये सब कुछ रुक जाए, पर जी। अब और तेजी से हमला, और इसका अंदाज भी लग गया है अमेरिका को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ साफ बोला है कि अब हमें भी कुछ नुकसान के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब हमें शांत रहने से कोई खास फायदा नहीं है। तो नुकसान तो जी, वो पूरी तरीके से अमेरिकी भुगत ही नुकसान तो चलिए, वो एक सोल्जर के नाम पर भी वहां की जनता जो है हंगामा करती है, और एज कंपेयर टू व्हाट वी हैव सीन द लॉसेस हियर। नागिन, मैं एक खबर के लिए आपके पास आना चाह रहा हूं। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि सऊदी अरब के कहने पर ईरान पर हमला किया अमेरिका ने। सऊदी अरब के कहने पर प्रिंस सलमान ने ट्रंप को फोन किया था और उन्हें हमला करने के लिए कहा था। ये प्रकरण जो है, कैसे आप देखते हैं सऊदी अरब के प्रोग्राम रुख में? बताएं, जल्दी बताएं। ये बहुत बहुत बड़ी खबर है जो कि आ रही है, लेकिन ये आ कहां से रही है? यूएस मीडिया से आ रही है। तो इट कैन बी प्रोपागेंडा फ्रॉम द यूएस मीडिया, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव टू जस्टिफाई द एंटायर अटैक। तो मैं सबसे पहले समझाऊं कि सऊदी अरेबिया या प्रिंस सलमान ने अगर फोन किया होगा तो क्यों किया होगा, और इसके रीजन क्या हो सकते हैं। देखिए, अगर खामेनेई मारे गए तो अब सबसे बड़ी बात है कि एक वैक्यूम क्रिएट हो ही रहा है वहां पे। सऊदी अरेबिया एक नेबरिंग कंट्री है, उनके
अपनी अपनी बहस है, शिया और सुन्नी की लड़ाई है। अब ये शिया और सुन्नी की लड़ाई को, एक कहते हैं ना कि जो अंग्रेज है ना, वो लड़वा लड़वा के ही शासन करते हैं, चाहे भारत में किया चाहे जहां भी किया। तो अब यहाँ पे भी अगर आप शिया और सुन्नी का एक लड़ाई, अलग लड़ाई शुरू कर दें तो उसमें तो बहुत फायदा है। एमबीएस के लिए बहुत आसान होगा ईरान को कंट्रोल करना, अगर वहां पे एमबीएस को भेजा जाए। अगर एमबीएस ने ऐसा किया है तो ये केवल वैक्यूम जो है उसको भरने की बात है। और ये शिया, जो दो ग्रुप हैं, जो मुसलमानों के बीच का एक डिवाइड है शिया और सुन्नी का, वो अगर बढ़ जाता है तो इसका फायदा, सबसे ज्यादा फायदा इजराइल को होना है। और एमबीएस कौन से, उनको धर्म से फर्क पड़ता है, उनको अपना तेल बेचने से मतलब है, उनको जी। राज से मतलब है। वो बने रहे वहां पे, प्रिंस से किंग बन जाए, उनका खानदान पूरी जिंदगी राज करता रहे, खूब सारे पैसे बनाए, अरबों खरबों कमाए। तो एक चीज तो ये भी है कि एमबीएस ने ये इस्लाम का साथ तो छोड़ दिया है। जैसे वो करते थे, जो भी नियम कानून बना रखे हैं कि और दबा के रखा गया, तो अब बड़ा दिखाया जा रहा है कि हम बहुत महान बनते जा रहे हैं जी। आप आइए, टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप आके सऊदी अरेबिया में टूरिज्म करिए, जहां लोगों को लटकाया जाता है कुछ भी बोलने के लिए या इस्लाम के खिलाफ बोलने के लिए। और वहां पे मुतव्वा पुलिस लोगों की पिटाई करती है अगर आप सड़क पे हैं जिस समय नमाज होती है। तो ये सारी चीजें, तो एमबीएस का मुंह इतना, खशोगी को आपने मरवा दिया था, तो आप समझते हैं कि कितना उन्होंने गंदगी फैलाई है, कितना उन्होंने किस प्रकार से शासन किया है। और उसके बाद अब उनके पास एक मौका है कि वो ईरान पे भी कंट्रोल कर सके और एक तरीके से शिया और सुन्नी की जो लड़ाई है उसका फायदा उठा सके। उनको हो सकता है वहां पे सपोर्ट मिले। हाउएवर, ये बात बिल्कुल सच है कि जब खामेनेई बोलते थे तो सऊदी की सड़कों पे लोग निकलते थे खामेनेई के सपोर्ट में। ये भी होता रहा है जी। वहां पे कि खामेनेई के लिए वहां पे बहुत ज्यादा सपोर्ट था। अगर शिया और एमबीएस सुन्नी का जो डिवाइड है, बिल्कुल। जी, शिया और सुन्नी का डिवाइड ही है, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच ईरान, की बिल्कुल। शिया और सुन्नी की है। और उसका फायदा अब ट्रंप लगता है कि उठा रहे हैं, इजराइल उठा रहे हैं। तोड़ो और बिल्कुल। शासन करो। जी, ये तो बिल्कुल सही कहा नागिन आपने। इस्लामिक देशों के समूह के अध्यक्ष के तौर पर देखे जाने की जो लड़ाई थी, वो प्राइमरली शिया और सुन्नी डिवाइड को ही दिखाता है। आप देखेंगे जिस तरह से सऊदी अरेबिया में हम मक्का मदीना की बात करते हैं, यूएई एक तरफ हो गया, ईरान हो गया, टर्की और पाकिस्तान, और साथ में आसपास के जो इलाके हैं, चाहे वो इजिप्ट हो या गल्फ और अरब स्टेट्स हैं, उनमें कौन वो एक नाम हो जो कि मुस्लिम देशों का नेतृत्व करे। जी नागिन। माफी चाहूंगा, तेजाब साहब के पास आप जाइएगा, बस मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं। ये देश जो है ना, टर्की टर्की और ये सऊदी अरेबिया, इनका ईमान धर्म तो है नहीं भाई, ये जी। रियलिटी है। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। सऊदी अरेबिया, टर्की, आप दुश्मनी भी दिखाते रहते हो इसराइल के साथ, वहीं बिक भी जाते हो और यूएस के हाथों आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो। तो इनका कोई ईमान धर्म नहीं है और ये पैसों का ही खेल है पूरा। आप सबको रूल करना है, चाहे एर्डोगान हो चाहे एमबीएस हो, सबको रूल करने से मतलब है। बस मैं इतना जोड़ना चाहता था कि इस्लाम के नाम पे ना लोगों का इतना ज्यादा काटा जा रहा है, वो एंडलेस है। वो एंडलेस है। मिडिल ईस्ट में ये इस्लाम के नाम पे जो काटा गया है लोगों का, वो एंडलेस है। और इतने सारे जो देश हैं, इतने बड़े बड़े देश हैं, सबसे अमीर देश हैं, कि यहां तक कि बोला जाता है कि कतर तक यूएस को कंट्रोल करता है क्योंकि इतना पैसा है वहां पे। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। गरीब देश जिनको बर्बाद कर दिया यूएस ने, इराक, सीरिया, सबको बर्बाद कर दिया आपने, जो नहीं झुके। और एक अमीर देश जो गुलामी करने के लिए हमेशा से तत्पर थे, गुलामी की है पूरी जिंदगी उन्होंने, और अब इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना चाहते हैं। बहुत ही शर्मनाक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। टर्की कितना मुंह मारता है इसमें, यह भी देखने लायक होगा। जी बिल्कुल नागिन। यहाँ पर हम एक कुछ साउंड बाइट्स और विजुअल्स के लिए रुकेंगे। और नागिन ने जो बात कही, जमाल खाशोगी करके एक उन्होंने नाम लिया, टर्की में अमेरिकी मूल के एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी और वो सऊदी अरब के कंसुलेट में हुआ था। और 3 देश इसमें शामिल थे, अमेरिका जिसके वो नेशनल थे, टर्की जहां वो घटना हुई थी, और सऊदी अरेबिया जो जमाल खाशोगी से परेशान थे। वो भी एग्जाम्पल बताता है इन तीनों ने किस तरह से एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया है, क्योंकि उसकी खबर कभी नहीं निकल के आई कि कैसे एक कंसुलेट में जो है एक जर्नलिस्ट की निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसमें भी इन लोगों ने एक दूसरे को बरी कर दिया था। और मोहम्मद बिन सलमान अभी से कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस की यात्रा पर थे, उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर। रिपोर्ट ये आ रही है, जैसा कि नागिन ने भी बताया, कि
अमेरिका ने ये जो हमला किया है ईरान पर, वो सऊदी अरब के कहने पर किया है, क्योंकि बहुत सालों से, कई वर्षों से जो है ईरान, हुदीज और उसके जो अलग तंत्र हैं वो सऊदी अरब के लिए आंख की किरकिरी बने हुए थे। जी नागिन। मैं कह रहा था सॉरी कि तेजावत साहब का इस पे इनपुट जरूर लीजिए। ही हैज सो बिल्कुल। मच एंड द स्टोरीज कि वो आपको सुन के मजा आ जाएगा। तेजावत जी साहब। जी 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 बिल्कुल। जी बताएं तेजावत साहब, आप कैसे देखते हैं इस प्रकरण को? बहुत ही अगर संक्षेप में कहा जाए पंकज साहब, तो क्या सऊदी अरेबिया की कोई राय होती है अमेरिका के सामने? बिल्कुल भी नहीं होती है। वो जो गिफ्ट भी लेकिन बहुत तय महंगे करना- महंगे देते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को, राय नहीं देते हैं, गिफ्ट देते जी हैं। जी जी जी। बिल्कुल। तो हम्म। यही है कि अमेरिका को पूरी तरीके से अपने हिसाब से ही चलाना है, और उसमें सऊदी अरेबिया की राय की कोई वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो वो किसी तरीके का कोई प्रेशर ग्रुप या किसी तरीके की कोई ऐसी चीज है जो कि वहां अमेरिका में एक्टिव है जैसा कि इसराइल करता है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पूरी तरीके से ये प्लान अमेरिका का है और ये लॉन्ग टर्म प्लान है। लोग इसे बहुत ही अगर फौरी तरह से देखते हैं और बाकी चीजों को अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो सीरिया से लेके यूक्रेन से लेके जो पूरी दुनिया में पिछले एक डिकेड से चल रहा है, तो मुझे लगता है कि भ्रम में है, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये तय हो जाएगा कि ये अमेरिकी साम्राज्यवाद है जो अपने पंजे फैला रहा है। अगर ये साम्राज्यवाद नहीं होता तो ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका का क्या रवैया होना चाहिए था? उन्होंने वहां पे वेनेजुएला में जो निकोलस मादुरो को लेकर उन्होंने क्या किया है, कनाडा को क्या धमकी मिल रही है, शुद्ध रूप से ये हमें पता चलता है कि अमेरिका अपने पंजे फैलाना चाहता है और सबको अपने अधिकार में लाना चाहता है। पंकज साहब। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तेजावत जी हमसे बातचीत करने के लिए। नागिन, थैंक यू सो मच। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.